इधर आइए। হাসিনার কি অবস্থা হয়েছিল সেম অবস্থা হতে চলেছে নরেন্দ্র মোদী। লাগাতার যুদ্ধ চলবে, ভিয়েতনামে 12 বছর যুদ্ধ হয়েছে। दौड़ते हुए आजाद समाज पार्टी के लोग जो हैं वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ হুঁশিয়ার, তোমাদের কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली हैं। এবার নরেন্দ্র মোদী যেটাই ভয় খেয়েছিল সেটাই হলো। ঠিক নেপালের মতো ভারতের মধ্যে এমন কিছু ঘটতে চলেছে যা নরেন্দ্র মোদীর ঘুমকে হারাম করে দিয়েছে। ये कितना डर है, कितनी भीड़ है, इधर आइए, इधर आइए। नीतीश बीजेपी सर करोड़ भयंकर भीड़ हुई है यहाँ, और सरकार के खिलाफ ये भीड़ बगावत में उतर गई है। 26वां दिन हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास गए, वहाँ पे हम लोग को मारा गया। আর হাসিনাকে ভারতের মধ্যে আশ্রয় দেওয়ার কারণে মোদির বিরুদ্ধে ছুটতে চলেছে এবং ভারতীয়রা। এখন কি ঘটতে চলেছে ভারতের মধ্যে? हिंदू मुस्लिम करता है। ওদিকে এতদিনের বন্ধু ট্রাম্প, সেও ওকে জামা কষে দিয়েছে। মোদি একটা প্রধানমন্ত্রী হলো, দিনে 4-5টা ঘুমের ওষুধ খাচ্ছে কিন্তু ঘুম আসছে না। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ হুঁশিয়ার, তোমাদের কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে এমন তারা আমরা করব, তারা ভারত থেকে বের করে দেব। শুধু এখানেই শেষ নয়, ভারতের ছাত্ররা ঠিক বাংলাদেশের মতো কোটা আন্দোলনের মতো তারা রাস্তায় নেমে পড়েছে আর তারা মোদির বিরোধিতা করছে। কিন্তু কেন? আর ভারতের পার্লামেন্টে এমন এক ঘটনা ঘটিয়ে দিল মমতা ব্যানার্জি, যে ঘটনা ভারতে এর আগে কখনো ঘটেনি। সকলের সামনে, সকল মন্ত্রীদের সামনে নরেন্দ্র মোদীকে চোর এবং তার পার্টিকে চোর বললেন মমতা ব্যানার্জি। এখন ভারতের প্রত্যেক রাজ্যই একেবারে ছাত্ররা, যুবকরা এবং মেয়েরা সবাই মিলে রাস্তায় নেমে পড়েছে। কংগ্রেসের হাতে হাত ধরে তারা নরেন্দ্র মোদীকে চোর বলছে এবং নরেন্দ্র মোদীকে দেশ থেকে তাড়াবার জন্য তারা কি করছে? আর ভারতের মণিপুরের অবস্থা একেবারে অন্যরকম। সেখানে যেন রাত দিন সবসময় আগুন জ্বলছে। কিন্তু কেন? যখন মোদির পার্টিরা সেখানে গেল তখন এমন কি ঘটলো সেখানে? রাস্তায় নেমে আসছে মানুষ। আর ভারতের যুবকরা এবং বৃদ্ধরা তারা মোদির বিরুদ্ধে এমন কি কথা বলছে যে কথাগুলো মোদিকে একেবারে ভয়ে থরথর করে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী চোর है, नरेंद्र मोदी चोर है। यह नारा यह बिहार में ही नहीं, यह हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। ভারতের বিহারে তো মোদির এবং নীতিশের একেবারে গদি উল্টে যাওয়ারই পথ হয়ে গেছে। এখন তাহলে কি হবে? নরেন্দ্র মোদী কি ভারত ছেড়ে তিনি পালিয়ে যাবেন হাসিনার মতো? देखिए, सरकार से हम लोग का यही मांग है, जो जितना भी 8000 कर्मी को बर्खास्त किया है, उनको सबसे पहले ज्वाइनिंग किया जाए। कर्मियों को हम लोग अपनी मांगों के लिए धरना पे बैठे थे, तो हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तानाशाह और सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग इसी तरह रोड पे उतरते रहेंगे, संसद तक जाएंगे, उनका संसद में घेरेंगे। यदि आपकी আর বন্ধুরা, এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভারতের নরেন্দ্র মোদীর কিভাবে পতন ঘটতে চলেছে, কিভাবে সমাজ পার্টির মানুষেরা এবং বিহারের মানুষেরা দৌড়ে দৌড়ে বিজেপির কর্মীদেরকে রাস্তা থেকে বের করে দিচ্ছে। তাহলে নরেন্দ্র মোদী কি হাসিনার মতো দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে? চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখাবো যে নরেন্দ্র মোদী এবং তার পার্টির লোকেরা কিভাবে ভোট চুরি করে। চলুন ভিডিওটি দেখে নিই তাহলে। दौड़ते हुए आजाद समाज पार्टी के लोग जो हैं वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, दौड़ते हुए आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल में मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल में आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अनिकेत, चंचल
चंद्रशेखर रावत या क्या कुछ। हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास गए, वहाँ पे हम लोग को मारा गया, उनका संसद में घेरेंगे। वो लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार ने उन्हें 8,000 से ज्यादा जो सर्वे करने वाले अधिकारी हैं, जो सर्वे करने वाले लोग हैं, उनको बर्खास्त कर दिया। आप देखिए आपके सामने है, ये तस्वीर बिहार की तस्वीर है। अभी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये बिहार की तस्वीर है। सबसे पहले आप तीनों तस्वीर देख लीजिए। पहली तस्वीर ये असम की है, दूसरी तस्वीर ये बिहार की तस्वीर है और तीसरी तस्वीर ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। असम के भीतर आप देखिए कि लोग जुलूस निकाल रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, और बिहार की तस्वीर में आप देखिए तो लोग सड़कों के ऊपर हैं और सड़कों पर नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें कह रहे हैं और पुलिस लाठियां भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर चलाती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां विधानसभा के पास हजरतगंज के पास ये प्रदर्शन हो रहा है, यह आज ही का प्रदर्शन है और यहां पर आज़ाद समाज पार्टी प्रदर्शन कर रही है और विधानसभा तक ये लोग पहुंच गए थे। असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और भाजपा की सरकारों में लोग परेशान हैं, ये दिखलाई दे रहे हैं। युवा परेशान हैं, ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखलाई दे रहे हैं। बिहार के भीतर भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और असम के भीतर आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भीतर लोगों के घर उजड़ रहे हैं। एक रोड बननी है हैदर कैलान नाले के ऊपर, उसके पीड़ित लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों जगहों पर पीड़ित अलग अलग हैं। एक जगह युवा हैं, एक जगह एक आदिवासी समाज है और एक जगह पर लोग अपने घर को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों में कॉमन एक चीज़ है कि तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। पहली तस्वीर आप पहला वीडियो आप देखिए बिहार का, बिहार की तस्वीर देखिए, फिर आगे आपको बतलाते हैं। देखिए लाठी चार्ज हो चुका है, यहाँ जो पुलिस है वो लगातार छात्रों को अंदर भर रही है और वाटर कैनन का इस्तेमाल, भैया दिखाइए, जो प्रदर्शनकारी छात्र है उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है और लाठी चार्ज भी किया जा रहा है और एक एक करके छात्रों को पकड़ के जो डिटेन किए करने के लिए वैन लेके आए हैं उस वैन में भरा जा रहा है। देख सकते हैं कि कैसे लगातार पानी की बौछार कर रही है पुलिस और पानी की बौछार कर रही है और जो छात्र है, जो प्रदर्शनकारी छात्र है, उसको डिटेन कर रही है। भैया इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए हमारे माइक पे भी पानी पड़ गया है थोड़ा सा, लेकिन देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। और दिखाइए भैया, तस्वीरें दिखाइए किस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो प्रदर्शनकारी छात्र है उन्हें लगातार पीछे हटाने की, ढकेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। एक बार दिखाइए, जो छात्र थे वो लगातार बैरिकेड के पास डटे हुए थे और जैसे ही वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जैसे ही शुरू हुआ, छात्र पीछे चले गए। देखिए जो तमाम चीजें हैं वो हो रही हैं यहाँ पे और तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। छात्र पीछे तो चले गए हैं क्योंकि जो पानी की बौछार है उसकी स्पीड बहुत तेज थी और छात्र उससे नुकसान भी पहुंच सकता था, इसलिए छात्र पीछे भाग गए हैं। साथ ही साथ कुछ मीडिया कर्मी भी इस पानी के बौछार के लपेटे में आ गए हैं, हम भी आ गए थोड़ा सा। और इसके अलावा जो पुलिस है वो लाठी चार्ज करने को तैयार है। अब जो छात्र अगर आगे आने की कोशिश करते हैं, जो फिलहाल तो पीछे हट गए हैं, तो पुलिस उनको डिटेन करने की कोशिश करेंगी और सिचुएशन अब यहाँ बिगड़ता दिख रहा है। देखिए छात्रों को लगातार पीछे घसीटा जा रहा है और जो डिटेंशन वैन है उसमें भी अब डाला जाएगा। देखिए यहीं पे जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं यहीं पे डटे हुए थे, यहीं पे पूरे छात्र डटे हुए थे, सुबह 10 बजे से डटे हुए थे और अभी शाम के 4 बजने को आया है और वो हटने को तैयार नहीं थे। इन सबके बीच जैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, आंदोलन कर रहे थे, वो पीछे भाग गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि अगर छात्र पीछे नहीं हटते हैं तो लाठी चार्ज भी किया जाएगा। हालांकि लाठी चार्ज करने की नौबत नहीं आई, पुलिस ने बस छात्रों को दौड़ाया है और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए छात्र पीछे हट गए, पूरा रास्ता खाली हो गया है। ये छात्र क्या भैया क्या हो रहा है? वाटर कैनन छोड़ रहा है विद्यार्थी पे। और क्या आपकी मांगों के बारे में कुछ आश्वासन दिया क्या? कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। आश्वासन कहाँ मिला? मिलता तो हम लोग घर जाते, यहीं रहते। अभी तो पीछे चले गए सारे छात्र। पीछे चले क्या करेगा? लाठी खाएगा, बताइए ना। लाठी के डर से पीछे जाएगा ही। अच्छा ये बताइए कि सरकार तो आपकी मांगे सुन नहीं रही है, तो इस सरकार के साथ अब क्या करना है? सरकार के साथ सरकार मांग नहीं सुनेगी तो इस बार हम लोग वोट का चोट करेंगे
इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देंगे और क्या करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे बिहार के भीतर बीपीएससी टीआरई 4 के जो छात्र हैं और इससे पहले जो संविदा कर्मी हैं उनको पहले बिहार के भीतर पीटा गया और उसके बाद ये छात्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। अब तुरंत ही आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी देख लीजिए, यहाँ भी भाजपा का शासन है और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी किस तरीके से घरों को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। मात्र लखनऊ में विधानसभा से कुछ ही मीटर की दूरी आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन नेपाल और भारत के आंदोलन में अंतर यह है कि भारत की जनता संविधान को मानने वाली जनता है, संविधान में भरोसा रखने वाली जनता है, संविधान में विश्वास रखने वाली जनता है। इसलिए वो संवैधानिक तौर पर संवैधानिक नियमों के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार से कह रहे हैं, जो एक किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में बात कहने का तरीका होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र देश है पहले से और भारत हिंदू राष्ट्र देश नहीं है। और भारत में तमाम सारे लोग इस बात को कहते हैं कि नेपाल की तरह भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो उत्थान हो जाएगा, प्रगति हो जाएगी। अगर ऐसा ही है तो फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र तो पहले से था, तो वो प्रगति क्यों नहीं कर पाया, उन्नति क्यों नहीं कर पाया। भारत विविधताओं का देश है, विविधताओं में भरा हुआ देश। एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी डर ही रही है। दूसरी तरफ जगह जगह पर ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि ऐसे कि बीजेपी के राज में जो लोग हैं कितने ज्यादा त्रस्त हैं। बिहार में जिस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसके अलावा असम में जो आदिवासी समुदाय है वो भी नरेंद्र मोदी के झूठे वादों से त्रस्त हो चुका है और इस वजह से ही वो जो अपना कोटा चाहता है, आदिवासी कोटा, इसके लिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इन प्रदर्शनों का जो आउटकम है वो क्या निकल। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली हैं। নেপালের ছাত্র আন্দোলনে সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরপরই ভারতেও বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয়েছে জেনজি আন্দোলন, যার ফলে বিপাকে পড়েছে মোদি সরকার। বিহারের পর আসাম, ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছে ছাত্র আন্দোলনের আগুন। দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দাবিতে রাস্তায় নেমে আসছে হাজার হাজার মানুষ। গত মঙ্গলবার চাকরি প্রত্যাশীদের আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছিল বিহারের বিভিন্ন এলাকা। এবার বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে দেশটির আরেক রাজ্য আসাম। অবস্থা যখন এই, তখন প্রশ্ন উঠেছে যে শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের কসাইখ্যাত নরেন্দ্র মোদীর গদিও কি নড়ে চড়ে উঠবে? তাকেও কি হেলিকপ্টারে করে পালাতে হবে দেশ ছেড়ে? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যের তিনকুশিয়া জেলায় মোরান সম্প্রদায়ের প্রায় 20,000 মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। তাদের দাবি অবিলম্বে মোরানদের তফসিলি উপজাতি মর্যাদা দিতে হবে। অল মোরান স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ শুরু হয় তালাপ, কাকোপাথার ও মার্ঘেরিটায় ধারাবাহিক কর্মসূচির মাধ্যমে। এরপর তারা তিনসুকিয়া শহরে এক বিশাল সমাবেশ করেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসাম সফরের ঠিক আগে এই বিক্ষোভ পুরো শহরকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী 72 ঘন্টার মধ্যে সরকার যদি স্পষ্ট কোনো পদক্ষেপ না নেয় তবে 15 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ব্যাপক অর্থনৈতিক অবরোধ। न जाने बीजेपी के लिए कौन सी मुसीबतें सिर उठाए खड़ी होंगी। ফ্রি প্রেস জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চতুর্থ দফা শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে বিহারে। শূন্য পদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার বিক্ষোভ করেন হাজারো চাকরি প্রত্যাশী। ওই দিন সকাল থেকে প্রায় 3,000 মানুষ পাটনা কলেজ প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বাসভবনের দিকে মিছিল শুরু করেন। কেতন মার্কেট, বকরগঞ্জ, গান্ধী ময়দান, জেপি গোলাম্বার হয়ে ডাকবাংলো স্কয়ার পর্যন্ত ওই মিছিল চলায় রাজধানীর বেশ কিছু এলাকা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। চাকরি প্রত্যাশীরা স্লোগান দিতে দিতে দাবি করেন, সরকারের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 15 সেপ্টেম্বরের মধ্যে 1,20,000 শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। তাদের অভিযোগ, সরকার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসেছে। মাত্র 1 বছরের মধ্যে ভারতের আশেপাশে যা ঘটছে তা ভারতের কাছে, ভারতের শাসক শ্রেণীর কাছে খুবই চিন্তার বিষয়। শ্রীলঙ্কা থেকে বাংলাদেশ আর এখন নেপাল পর্যন্ত ভারতের প্রায় সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক পালাবদল হচ্ছে গণবিক্ষোভ বা গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। সব মিলিয়ে খুব একটা ভালো পরিস্থিতিতে নেই মোদি সরকার।
চারিদিক থেকে উঠছে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ, যা মোদী সরকারের কপালে ফেলেছে চিন্তার ভাঁজ। মোদীর গতি কি হবে তা তো সময় বলে দিবে। ফার্স্টবিট তাজ, ATN বাংলা। বন্ধুরা, আশা করছি আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা সম্পূর্ণ তথ্যটি জানতে পেরে গেছেন ভারতের মধ্যে এখন কি ঘটনা ঘটছে। ঠিক নেপালের মতো না বাংলাদেশের মতো না শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থা হবে ভারতের। হ্যাঁ, জানলে অবাক হয়ে যাবে নরেন্দ্র মোদী তিনি জেতেননি, তিনি ভোট চুরি করে জিতেছেন। আর এটা প্রুফ করে দিয়েছেন ভারতের কংগ্রেস পার্টির যিনি এখন মহান, যিনি হচ্ছেন রাহুল গান্ধী, তিনি এই কথাটি প্রুফ করে দিয়েছেন। এমনকি সুপ্রিম কোর্টেও তিনি প্রুফ করে দিয়েছেন। এই ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করে দেবেন, কমেন্টে জানিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, নিজেদের খেয়াল রাখতে ভুলবেন না।